یہاں دن میں نئے خیال کا دربار لگتا ہے اور رات بھر پرانے علوم کی پڑتال ہوتی ہے. یہاں ہر بات پر سر کو ہلانا منع ہے، سوچے سمجھے بغیر مان جانا منع ہے. جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے. یہ طے ہوا تھا کہ خوب روئیں گے جب ملیں گے، یہ طے ہوا تھا کہ خوب روئیں گے جب ملیں گے، اب اس کے شانے پہ سر ہے تو ہنستے جا رہے ہیں. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں، دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں. ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے، ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے، ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں. ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے، ذرا آپ صبر تو کیجئے، ابھی داستاں کی ہے ابتدا، بڑے واقعے ابھی آئیں گے. پھر دیکھیے گا کہ نہ دیکھو خواب اچھی لڑکیوں کا تم، نہ دیکھو خواب اچھی لڑکیوں کا تم، تمہیں اردو اگر اچھی نہیں آتی. جو اپنے دل پہ محبت کا داغ رکھتا ہے، چراغ سے بھی زیادہ چراغ رکھتا ہے. ملا ہے اب کے ایک ایسا پڑھا لکھا محبوب جو میرے دل سے زیادہ دماغ رکھتا ہے. نہ جانے کون آیا تھا ہتھیلی کے نشاں جس کے کچن کے میلے شیشوں پر نمایاں تھے. نہ جانے کون تھا وہ جو پرانی کھڑکیوں پر زور بازو آزماتا تھا اور اس پہ گھر کا دروازہ نہ کھلتا تھا. پرانے گھر بہت مضبوط ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے کھلتے ہیں. اور تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد، تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد، مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں. اس مشاعرے کا عنوان رکھا گیا ہے الفاظ و انداز. وہ جو شاعرہ نے کہا پروین شاکر نے کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. تو یہ الفاظ ہی ہیں جو شاعر کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن یہ الفاظ تبھی زندہ رہتے ہیں جب شاعر کا اپنا ایک الگ انداز ہو. سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. اس محفل میں جتنے شعر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور شاعرات، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ و انداز سے اپنی انفرادیت کو منوایا ہے. ابھی جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سب کا اپنا ایک بالکل جدا گانا رنگ ہے. تو اس مشاعرے کا آغاز ہم صاحب صدر کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایک ایسی شاعرہ کو بلا رہے ہیں جو جدید نئی نسل کی نمائندگی کرتی ہیں. عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں اور یہاں بہت فعال ہیں. آپ اس جدید نئی نسل سے تعلق رکھتی ہیں جہاں صرف اردو زبان میں نہیں بلکہ انگریزی زبان اور دیگر زبانوں کے تخلیق کار بھی مل جل کر کام کرتے ہیں. آپ ایک ادبی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کو شاعری وراثت میں ملی ہے. آپ کی والدہ ریحانہ روحی اردو دنیا کی معروف شاعرہ ہیں، لیکن ہماری اس شاعرہ نے اپنے اظہار کا ایک الگ راستہ اختیار کیا ہے.
फनी और फिक्री दोनों सतहों पर इनकी गहरी इनफरादियत और नए मौजूआत की झलक हम और आप बआसानी देख सकते हैं। अभी वो अहद हाजिर की जदीद सिन्फ नज़्म में अपने वजूद को मनवा रही हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी उरूज आसिफ। आदाब दोस्तों, रेख्ता को लंदन में और लंदन में रेख्ता का आप सबको सलाम, आदाब, खुशामदीद। आज हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि उर्दू अदब का, बल्कि अदब का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल लंदन आ गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन एज वेल। मैं 2 नज़में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी पहली नज़्म का उन्वान है हाउस ऑफ विजडम। तो नज़्म सुनिए कि आज इत्तफाक से एक पुरानी किताब मिली जो मुझे 12वीं सदी के शहर बगदाद ले आई। मैंने देखा कि मैं एक शानदार लाइब्रेरी में खड़ी हूँ। मेरे अतराफ़ हज़ारों उलूम पर मबनी हज़ारों किताबें बड़े ज़ौक़ से कतार लगाए पढ़े जाने को बेताब खड़ी हैं। बाहर इनके चाहने वालों की लंबी लाइन है। लोग अंदर आते हुए अपना रंग, नस्ल, मज़हब और तासुब दरवाजे की खूंटी पे टांग आते हैं। लोग अंदर आते हुए अपना रंग, नस्ल, मज़हब और तासुब दरवाजे की खूंटी पे टांग आते हैं और फिर बच्चों की तरह हाथ मलते किताबों की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ दिन में नए ख्याल का दरबार लगता है और रात भर पुराने उलूम की पड़ताल होती है। यहाँ दिन में नए ख्याल का दरबार लगता है और रात भर पुराने उलूम की पड़ताल होती है। यहाँ हर बात पर सर को हिलाना मना है, सोचे समझे बगैर मान जाना मना है। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। यहाँ हर बात पर सर को हिलाना मना है, सोचे समझे बगैर मान जाना मना है। मेरा दिल यहाँ रच बस जाने को चाह ही रहा है कि अचानक एक ज़ोर का धमाका होता है और मैं देखती हूँ कि हलाकू खान अपनी सफ़ाक फ़ौज समेत लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा है। सुना है हलाकू को किताबों से बला की नफ़रत है। सुना है हलाकू को किताबों से बला की नफ़रत है। सो वो हमारी 100 मिन्नतों के बावजूद एक एक करके उन सदियों की मेहनत पे मबनी किताबों को शहर के दरिया में बहा देता है। मैं घबरा के अपनी किताब बंद कर देती हूँ और अपनी महज़्ज़ब 21वीं सदी में लौट आती हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरी सदी में किताबें बेतहाशा हैं और उन्हें पढ़ने वाले भी बहुत हैं। ये और बात कि उनकी सोच आज भी किसी दरिया के भंवर में फंसी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी नज़्म उन लोगों के नाम है जो कश्तियों पे बैठ के इंग्लिश चैनल की तरफ आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 23,000 लोग, 23,000 people have come on boats in the past 8 years. ये मैं जो हमारे यंग लोग हैं उनके लिए अंग्रेज़ी में कह रही हूँ। And they've drowned in the English Channel. तो उन लोगों के नाम एक नज़्म देखिए। नज़्म का उन्वान है सब ह्यूमन्स, यानी आधे इंसान। आधे इंसान।
اب کہ تم ساحل پہ جانا تو غور سے سننا، ہوا کی سنسناہٹ میں، پانیوں کی آہٹ میں میرے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ اب کہ تم ساحل پہ جانا تو غور سے سننا، ہوا کی سنسناہٹ میں، پانیوں کی آہٹ میں میرے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ کشتیاں جلا کے وہ کشتیوں پہ آئے تھے، کشتیاں جلا کے وہ کشتیوں پہ آئے تھے، بھوک اور غربت سے تنگ آ کے نکلے تھے، جنگ اور نفرت سے دامن بچا کے نکلے تھے، خوابوں کے کچھ سوداگر انہیں دھوکے سے لائے تھے، خوابوں کے کچھ سوداگر انہیں دھوکے سے لائے تھے، دھوکا تھا محبت کا، امن اور رحمت کا، تمہارے دل کی وسعت کا۔ یورپ کے نام یہ نظم دیکھیے کہ دھوکا تھا محبت کا، امن اور رحمت کا، تمہارے دل کی وسعت کا، کسی نے قصہ چھیڑا تھا تمہاری انسان دوستی کا، انصاف کی برتری کا، انہیں بھلا یہ کیا پتا تھا کہ تمہاری ڈکشنری میں انسانیت کے درجے ہیں، انہیں بھلا یہ کیا پتا تھا کہ تمہاری ڈکشنری میں انسانیت کے درجے ہیں، رنگ کا ایک خانہ ہے، قومیت کے نمبر ہیں، رحم کی بھی شرطیں ہیں، انہیں بھلا یہ کیا پتا تھا کہ تمہاری ڈکشنری میں انسانیت کے درجے ہیں، رنگ کا ایک خانہ ہے، قومیت کے نمبر ہیں، رحم کی بھی شرطیں ہیں، سو تمہارے ساحلوں پہ اصول تو زندہ کھڑے ہیں، سو تمہارے ساحلوں پہ اصول تو زندہ کھڑے ہیں، مگر وہ اجنبی آدھے ادھورے انسان اپنی کشتیوں سمیت سمندر کی تہوں میں جا بسے ہیں۔ اب کہ تم شکریہ اب کہ تم ساحل پہ جانا تو غور سے سننا، ہوا کی سنسناہٹ میں، پانیوں کی آہٹ میں میرے کچھ لوگ رہتے ہیں، جو سر اٹھا کے کہتے ہیں سنو اب ہم آزاد ہیں، تمہاری ساری نفرتوں سے، تہمتوں سے، سرحدوں سے، سنو اب ہم آزاد ہیں۔ بہت خوبصورت اور منفرد نظمیں آپ نے سنی عروج آصف سے۔ انہیں مدعو کرنے سے پہلے ایک اہم بات کہنا ہم بھول گئے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے اور اس 1 گھنٹے میں ہمیں یہ اپنا مشاعرہ ختم کرنا ہے، تو ہم بصد احترام تمام شعراء شاعرات سے درخواست گزار ہیں کہ کوئی 2 چیزوں کا انتخاب کر لیجئے اور وہ 2 چیزیں یہاں پر پیش کیجیے گا۔ اگر آپ غزل سنائیں تو بس کوشش کیجیے گا 7 اشعار سے زیادہ کی نہ ہو، کبھی کوئی معصوم شاعر 24-25 شعروں کی یہ غزل سنا جائے اور کہے کہ جی آپ نے کہا تھا 2 چیزیں۔ اب ہم جس شاعر کو مدعو کر رہے ہیں وہ بھی نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور جیسا کہ احمد مشتاق نے کہا ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ بالکل، تالیاں بجائیں تو تالیوں کی طرح چٹکیاں نہ بجائیں۔ جس شاعر کو اب ہم مدعو کر رہے ہیں ان کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ کراچی میں گزرا، اور جب وہ کراچی میں تھے تو اس وقت بھی ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ FM ریڈیو ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کی شاعری، ان کی تخلیقی شخصیت کی چمک سب کو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کی اڑان میں کہیں قطغنیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر وہ باہر چلے گئے جرمنی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی بے پناہ تخلیقی شخصیت کی نئی وسعتوں کو
दरियाफ्त किया और पूरी दुनिया से मुतारिफ कराया। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी ऐसी शायरी और ऐसे ख़यालात पेश किए जिसको आप जदीद नज़्म कहेंगे, जिसमें जमालियात से ज़्यादा दबंग लहजे में एहतजाज और मज़ाहमती आहंग मिलता है। ज़िंदगी के पेचीदा सवालात और उनके जवाबात, नए जज्बे, नए ख्वाब और एक नई ज़िंदगी के लिए जो कामयाबियां हमारे इस शायर ने हासिल की हैं वो काबिल तहसीन हैं। इन्होंने अपनी इस बात की बुनियाद हर गलत की रद पर रखी है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं आतिफ तौक़ीर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब चूँकि वक्त कम है, मैं आपको 2 नज़में सुनाना चाहता हूँ, लेकिन ज़रा माहौल के लिए मैं एक शेर भी आपकी नज़र करता हूँ। जो एक खला है मोहब्बत में वस्लो हिज्र के बीच, जो एक खला है मोहब्बत में वस्लो हिज्र के बीच, सभी को खौफ उसी दरमियां से आता है। जो एक खला है मोहब्बत में वस्लो हिज्र के बीच, सभी को खौफ उसी दरमियां से आता है ज़ात ऐसी मुकफ्फल के दम नहीं आता, तेरा ख्याल न जाने कहां से आता है ज़ात ऐसी मुकफ्फल के दम नहीं आता, तेरा ख्याल न जाने कहां से आता है। मैं भी खुदा परस्त हूं, तू भी खुदा परस्त है। मैं भी खुदा परस्त हूं, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियां फिर भी बुलंदोपस्त है। मैं भी खुदा परस्त हूं, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियां फिर भी बुलंदोपस्त है। ऐसी घनेरी तीरगी गोया दिया भी मोतबर, ऐसी घनेरी तीरगी गोया दिया भी मोतबर, हैं वो कठिन मुसाफतें जैसे कदम भी जस्त है। हैं वो कठिन मुसाफतें जैसे कदम भी जस्त है। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है। जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है। तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहां रहा, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहां रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है। तेरी हर एक दलील में, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद निहां रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है। यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं, यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं। कोई यकीन बदस्त है, कोई गुमा बदस्त है, कोई यकीन बदस्त है, कोई गुमा बदस्त है। आपकी नज़्म इजाफियत, ये वक्त क्या है? इजाफियत है। ये वक्त क्या है? इजाफियत है कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा निगूं सरी को सफर समझना। ये वक्त क्या है? इजाफियत है कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा निगूं सरी को सफर समझना, कि जैसे माकूस जावियों को सफीर गश्ते सही समझना। ये दायरा वार गर्दिशों के नुकाते मगफी को देख लेने के एक दावे से बढ़ के क्या है? ये वक्त क्या है? ये वक्त क्या है? इजाफियत है कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा निगूं सरी को सफर समझना, कि जैसे माकूस जावियों को सफीर गश्ते सही समझना। ये दायरा वार गर्दिशों के नुकाते मख्फी को देख लेने के एक दावे से बढ़ के क्या है? हम एक गुज़श्ता से हाल और फिर आइंदा होते हैं या खड़े हैं? ज़मा मकां की हर एक तफहीम बखिया बखिया उधड़ रही है कि 4 समतों के इस ताउन के बीच भी तो 1000 समतों का जाल सा है। हर एक यकीन को किसी हवाले, किसी तसव्वुर, किसी गुमा से ही निस्बतें हैं। हर एक हरकत, हर एक सुकूनत तजाद हो के भी मुंसलिक है। सुकून क्या है? खुद अपने मानी में दायरा है। सुकूत क्या है? इजाफियत है। सो इसकी पैमाइशों को फिर शोर की जरूरत। यहां पे पैमाइशें हवाला,
यहाँ ज़रूरत भी एक हवाला, हकीकतों के समुंदरों का हर एक कतरा हजार इम्कान लिए हुए है, हर एक इम्कान इजाफियत है, शऊर इंसान इजाफियत है, वजूद वजदा इजाफियत है। खुदा हवाला है या हकीकत? खुदा हवाला है या हकीकत? अगर हकीकत है तो हवाला खलाएं कैसे? अगर हवाला है तो हकीकत सवाल क्यों है? ये कायनातों को नूरी सालों से नाप लेने की एक सही है। तजाजुब बेकरां की वुसत, सिताराए इंतहा से लेकर वजूद बे इंतहा की सरहद उबूर करना खुदा कुशी है कि खुदकुशी है? ये सब सरासर इजाफियत है। हर एक पैगंबर इजाफियत है, लहब का बिस्तर इजाफियत है, तमाम मंजर इजाफियत है। ये वक्त क्या है? इजाफियत। मसला यहाँ होता है कि जब नए आने वाले नया कहें तब बात बनती है। हम जिस शायर को बुला रहे हैं वो न सिर्फ नई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे जाहिर है कि जब नई नस्ल अपने तजर्बात का, अपनी ज़िंदगी का इजहार करती है तो वो एक नई लुग़त तरतीब देती है। तो हमारे ये नए शायर भी अपनी एक लुग़त मुरतब कर रहे हैं और इनके जब कलाम को आप सुनेंगे, इनकी शायरी आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनके यहाँ रिवायत और जिद्दत का बड़ा हसीन इम्तिजाज मिलता है। इनकी लफ्ज़ियात भी अपनी हैं, इनके तजर्बात भी अपने हैं और उन तजर्बात को बयान करने की कोशिश भी अपनी है। आप सबकी भरपूर तालियों में पल्लव मिश्रा जी। सबसे पहले तो ताख़िर के लिए माजरत। अब बात यहाँ पहुँच गई है तो यहीं से शुरुआत करता हूँ कि सहरा से तेरे खाक बसर आ तो गए हैं, कि सहरा से तेरे खाक बसर आ तो गए हैं, हाँ देर से आए हैं मगर आ तो गए हैं। कि सहरा से तेरे खाक बसर आ तो गए हैं, हाँ देर से आए हैं मगर आ तो गए हैं। तेज धूप में तपकर मोजज़े पकाया कर, तेज धूप में तपकर मोजज़े पकाया कर, इस ज़मीं पे साया कर खूब फल खिलाया कर, इस ज़मीं पे साया कर खूब फल खिलाया कर। वक्त पर जो मिलते हैं वक्त से बिछड़ते हैं, कि वक्त पर जो मिलते हैं वक्त से बिछड़ते हैं। वक्त पर ना आया कर वक्त से न जाया कर, वक्त पर जो मिलते हैं वक्त से बिछड़ते हैं। वक्त पर ना आया कर वक्त से न जाया कर। जैसे हुस्न की दौलत वक्त खर्च देता है, जैसे हुस्न की दौलत वक्त खर्च देता है। चंद कीमती लम्हे मेरे साथ जाया कर, जैसे हुस्न की दौलत वक्त खर्च देता है। चंद कीमती लम्हे मेरे साथ जाया कर। बातों से वो क्या मेरा इरादा नहीं समझा, बातों से वो क्या मेरा इरादा नहीं समझा। कुछ इसलिए मैंने उसे सादा नहीं समझा, बातों से वो क्या मेरा इरादा नहीं समझा। कुछ इसलिए मैंने उसे सादा नहीं समझा। किया करते थे चालाकी सब हैरान बैठे हैं, किया करते थे चालाकी सब हैरान बैठे हैं। किसी से झूठ बोला था उसे सच मान बैठे हैं, किया करते थे चालाकी सब हैरान बैठे हैं। किसी से झूठ बोला था उसे सच मान बैठे हैं। बहुत कुछ जानते हैं जानना जिनको नहीं मुमकिन, बहुत कुछ जानते हैं जानना जिनको नहीं मुमकिन। किसी को क्या बताएं किस कदर अनजान बैठे हैं। बहुत कुछ जानते हैं जानना जिनको नहीं मुमकिन, किसी को क्या बताएं किस कदर अनजान बैठे हैं। एक गजल से कुछ शेर देखिए कि बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं, बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं। कोई तो आता नहीं है हम जैसे जा रहे हैं,
बड़ी तमन्ना से तेरी महफिल से जा रहे हैं, कोई तो आता नहीं है हम जैसे जा रहे हैं। वो सांस लेते रहें तो ये उनकी जीत होगी, वो सांस लेते रहें तो ये उनकी जीत होगी, जो तुझको उल्फत में हार कर जीते जा रहे हैं। वो सांस लेते रहें तो ये उनकी जीत होगी, जो तुझको उल्फत में हार कर जीते जा रहे हैं। यहां फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, यहां फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसीलिए सब तेरी तरफ देखे जा रहे हैं। यहां फकत तूने अपना चेहरा छुपा रखा है, इसीलिए सब तेरी तरफ देखे जा रहे हैं। ये राह फुरकत पे हमसफर की उम्मीद कैसी, ये राह फुरकत पे हमसफर की उम्मीद कैसी, तुम्हें अगर है तो जाओ ये रास्ते जा रहे हैं। कि ये राह फुरकत पे हमसफर की उम्मीद कैसी, तुम्हें अगर है तो जाओ ये रास्ते जा रहे हैं। ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, अब उसके शाने पे सर है तो हंसते जा रहे हैं। ये तय हुआ था कि खूब रोएंगे जब मिलेंगे, अब उसके शाने पे सर है तो हंसते जा रहे हैं। आखिर में कुछ और शेर देख लीजिए कि कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, क्या खबर कल को तो कुछ और भी प्यारा हो जाए। बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, क्या खबर कल को तो कुछ और भी प्यारा हो जाए। मोतदिल मध्यम को कहते हैं कि मोतदिल आंच पे पकता हुआ दिल क्या मालूम, मोतदिल आंच पे पकता हुआ दिल क्या मालूम, मौसमे सर्द में सीने का सहारा हो जाए। कि मोतदिल आंच पे पकता हुआ दिल क्या मालूम, मौसमे सर्द में सीने का सहारा हो जाए। तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूं, तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूं, तभी बतलाऊं अगर तुमको गवारा हो जाए। कि तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूं, तभी बतलाऊं अगर तुमको गवारा हो जाए। टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, मैं अगर आंख भी झपकूं तो इशारा हो जाए। टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, टकटकी बांध के यूं देख रहा है मुझको, मैं अगर आंख भी झपकूं तो इशारा हो जाए। बहुत शुक्रिया। अब जिस शायरा को हम दावत कलाम दे रहे हैं उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप लोगों से कह सकते हैं कि उनको दाद जरूर दीजिएगा क्योंकि वो हम खुद हैं। साहिब सदर की इजाजत से चंद अशार जो एक गजल के बराबर होंगे और फिर एक नज्म। अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, वो अपने वादों से यकसर मुकरने वाला था। अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, वो अपने वादों से यकसर मुकरने वाला था। न जाने कैसे नजर से उतर गया यकदम, न जाने कैसे नजर से उतर गया यकदम, वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था। हाँ। न जाने कैसे नजर से उतर गया यकदम, वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था।
ये मैं हूं जिसने बढ़ाया है इस कहानी को, ये मैं हूं जिसने बढ़ाया है इस कहानी को, तेरा तो मरकजी किरदार मरने वाला था। ये मैं हूं जिसने बढ़ाया है इस कहानी को, तेरा तो मरकजी किरदार मरने वाला था। मैं सरफराज हूं तारीख के किरदारों में, मैं सरफराज हूं तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में। कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। कद्र यूसुफ की जमाने को बताई मैंने, तुम तो बेचाए उसे मिस्र के बाजारों में। दो शेर के खुशियां झूठी गम झूठे हैं, खुशियां झूठी गम झूठे हैं, दुनिया क्या तुम हम झूठे हैं। खुशियां झूठी गम झूठे हैं, दुनिया क्या तुम हम झूठे हैं। हाँ हमको भी इश्क है तुमसे, हाँ हमको भी इश्क है तुमसे, हम क्या तुमसे कम झूठे हैं। बहुत शुक्रिया आदम। अब एक नज्म। मुझे मेरी माँ ने बताया था बचपन में एक दिन, सुहागन वही है पिया मंजो भाई। मुझे मेरी माँ ने बताया था बचपन में एक दिन, सुहागन वही है पिया मंजो भाई। सो मैं सर झुकाए उम्र भर एक सुहागन के पैकर में ढलने की कोशिश में हलकान होती रही हूँ। सो मैं सर झुकाए उम्र भर एक सुहागन के पैकर में ढलने की कोशिश में हलकान होती रही हूँ। ये सांचा कुछ ऐसा था मैं जिसमें पूरी समाती नहीं थी, ये सांचा कुछ ऐसा था मैं जिसमें पूरी समाती नहीं थी। बहुत मैंने चाहा कि मैं अपनी हस्ती को मिस्मार करके सुहागन के पैकर में ढल जाऊं, लेकिन ये मुमकिन कहाँ था। बहुत मैंने चाहा कि मैं अपनी हस्ती को मिस्मार करके सुहागन के पैकर में ढल जाऊं, लेकिन ये मुमकिन कहाँ था कि रोज इसका सांचा नया रूप धारे, मुझे आजमाता, मेरी हार पर मेरा खाका उड़ाता। कि रोज इसका सांचा नया रूप धारे, मुझे आजमाता, मेरी हार पर मेरा खाका उड़ाता। बहुत साल गुजरे, बहुत साल गुजरे, मैं आज अपनी बेटी को समझा रही थी, सुहागन वही है पिया मंजो भाई। बहुत साल गुजरे, मैं आज अपनी बेटी को समझा रही थी, सुहागन वही है पिया मंजो भाई। मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मेरी माँ मुझे पहले तुम ये बताओ पिया कौन है, बस ब्याह कर जो लाए। मगर मेरी नन्ही सी बेटी ने सर को झुकाने से इनकार करते हुए मुझसे पूछा, मेरी माँ मुझे पहले तुम ये बताओ पिया कौन है, बस ब्याह कर जो लाए। तो मैं एक टुक देखती हूँ उसे और ये सोचती हूँ कि मैंने तो माँ से ये पूछा नहीं था, कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, सो मैं क्या बताऊं। मगर मेरी बेटी, मुझे ये यकीन है कि तू अपनी बेटी से जो कुछ कहेगी नई बात होगी, नए दौर की यूं शुरुआत होगी।
बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। और अब अपने पुराने काम पर वापस आते हैं और वो काम है निज़ामत। और अब हम जिस अगले शायर को मदऊ कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर तारुफ करा लें क्योंकि वक्त कम है, और जो वक्त बचेगा वो शायर को मिल जाएगा कि वो अपना कलाम पेश करें। और जाहिर है कि ये तमाम शोरा ऐसे हैं जिनको किसी लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये शायर जो हैं ये पेशे से भी मसीहा हैं और लफ्ज़ों से भी मसीहाई करते हैं। आपके 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं जिनके नाम बड़े मुख्तलिफ और मुनफरिद से हैं, जब दियों के सर उठे और प्यार की बोली बोल। और चूंकि ये पेशे से सर्जन हैं तो इनकी शायरी में भी कहीं कहीं जर्राही मिलती है तंज की, लेकिन चीर फाड़ वाला काम नहीं करते। ये बहुत मोहब्बत से, बहुत दर्दमंदी से माशरे की सूरत हाल को बयान करते हैं। इनके यहाँ बड़े सलीके से शेर कहने का एक ख़ास हुनर मिलता है। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं हिलाल फरीद साहब। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। जनाब सदर की इजाज़त से गज़ल के शेर पेश करता हूँ। जैसे ये भी फ़कत एक तमाशा हुआ लोग देखा किए, जैसे ये भी फ़कत एक तमाशा हुआ लोग देखा किए, आग लगती रही शहर जलता रहा लोग देखा के। जैसे ये भी फ़कत एक तमाशा हुआ लोग देखा किए, आग लगती रही शहर जलता रहा लोग देखा किए। सच पे हावी हुआ झूठ का सिलसिला लोग देखा किए, सच पे हावी हुआ झूठ का सिलसिला लोग देखा किए। कोई शिकवा गिला कब किसी ने किया लोग देखा किए। बात कहनी थी जो कैसे कहते भला लोग देखा किए, बात कहनी थी जो कैसे कहते भला लोग देखा किए। बोल बाला सितमगर का होता रहा लोग देखा किए। बात कहनी थी जो कैसे कहते भला लोग देखा किए। बोल बाला सितमगर का होता रहा लोग देखा किए। ओ हाथ जोड़े हुए सर झुकाए हुए नाम जपते रहे, हाथ जोड़े हुए सर झुकाए हुए नाम जपते रहे। इतना पूजा के बंदा खुदा बन गया लोग देखा किए। हाथ जोड़े हुए सर झुकाए हुए नाम जपते रहे, इतना पूजा के बंदा खुदा बन गया लोग देखा किए। ओ आई कैसी घड़ी क्यों वतन पे हमारे ये बिपता पड़ी, आई कैसी घड़ी क्यों वतन पे हमारे ये बिपता पड़ी। जुल्म बढ़ता गया कत्ल होता रहा लोग देखा किए। आई कैसी घड़ी क्यों वतन पे हमारे ये बिपता पड़ी। जुल्म बढ़ता गया कत्ल होता रहा लोग देखा किए। वो ऐसा जादू हुआ होश जाते रहे धुंध छाने लगी, ऐसा जादू हुआ होश जाते रहे धुंध छाने लगी। देखना था बहुत कुछ न कुछ भी दिखा लोग देखा किए। देखना था बहुत कुछ न कुछ भी दिखा लोग देखा किए। और हमसे पूछे कोई क्या कमाल आपका, हमने देखा हिलाल। हमसे पूछे कोई क्या कमाल आपका, हमने देखा हिलाल। शेर पढ़ते गए नक्श बनता गया लोग देखा किए। शेर पढ़ते गए नक्श बनता गया लोग देखा किए। एक गजल के चंद शेर और सुना देता हूं, इनको भी बर्दाश्त कर लीजिए। उन्हें साथ साथ करेंगे तय वो जो फासले अभी आएंगे। उन्हें साथ साथ करेंगे तय वो जो फासले अभी आएंगे। और कई रास्तों से गुजर चुके कई रास्ते अभी आएंगे। उन्हें साथ साथ
करेंगे तय वो जो फासले अभी आएंगे, कई रास्तों से गुजर चुके कई रास्ते अभी आएंगे, और नई रोशनी अभी आएगी, नए जाविये अभी आएंगे, नई रोशनी अभी आएगी, नए जाविये अभी आएंगे, इन्हीं मुंसिफों की जुबान पर नए फैसले अभी आएंगे, नई रोशनी अभी आएगी, नए जाविये अभी आएंगे, इन्हीं मुंसिफों की जुबान पर नए फैसले अभी आएंगे। जो रवा दवा मिली रहे गुजर तो पता चला उसे देखकर, जो रवा दवा मिली रहे गुजर तो पता चला उसे देखकर, कई काफले अभी जाएंगे, कई काफले अभी आएंगे। जो रवा दवा मिली रहे गुजर तो पता चला उसे देखकर, कई काफले अभी जाएंगे, कई काफले अभी आएंगे। और जरा दिल को थाम के बैठिए, जरा आप सब्र तो कीजिए, जरा दिल को थाम के बैठिए, जरा आप सब्र तो कीजिए, अभी दास्तां की है इब्तिदा, बड़े वाक़िए अभी आएंगे। जरा दिल को थाम के बैठिए, जरा आप सब्र तो कीजिए, अभी दास्तां की है इब्तिदा, बड़े वाक़िए अभी आएंगे। और इस महफिल की नजर कर रहा हूं, ये शेर का है, ये शाम शाम गजल मियाँ, जो यहाँ हुनर वो हुनर कहाँ है, ये शाम शाम गजल मियाँ, जो यहाँ हुनर वो हुनर कहाँ, जिन्हें सुन के सर को धुनोगे तुम वो भी काफिये अभी आएंगे। है ये शाम शाम गजल मियाँ, जो यहाँ हुनर वो हुनर कहाँ, जिन्हें सुन के सर को धुनोगे तुम वो भी काफिये अभी आएंगे। और मेरा यार भी है कमाल का, सुनी बात मेरी तो यूं कहा, मेरा यार भी है कमाल का, सुनी बात मेरी तो यूं कहा, ये तो इश्क का है मामला, बड़े मसले अभी आएंगे। मेरा यार भी है कमाल का, सुनी बात मेरी तो यूं कहा, ये तो इश्क का है मामला, बड़े मसले अभी आएंगे। मेरी जुस्तजू है अजीम तर, न किसी का खौफ न कोई डर, मेरी जुस्तजू है अजीम तर, न किसी का खौफ न कोई डर, मैं करूंगा खुद ही उन्हें भी सर, वो जो मरहले अभी आएंगे। मेरी जुस्तजू है अजीम तर, न किसी का खौफ न कोई डर, मैं करूंगा खुद ही उन्हें भी सर, वो जो मरहले अभी आएंगे। वो सभी दाग दिल के दिखाओगे कि उन्हें न कुछ भी बताओगे, सभी दाग दिल के दिखाओगे कि उन्हें न कुछ भी बताओगे। जरा तुम हिलाल ये सोच लो कि वो सामने अभी आएंगे। हिलाल फरीद साहब को आपने समाअत किया, और ये आलमी मुशायरा जिसमें बरतानिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी से शोरा और शायरात शरीक हैं, उसमें अब हम जिस शायर को मदऊ कर रहे हैं उनका नाम इंडियन फिल्मों के निहायत खूबसूरत, मुनफरिद और अनोखे गीतों की वजह से चमका, और फिर वो चमक पूरी दुनिया में फैल गई। वो अदब के निहायत संजीदा पारिक हैं, और फिल्मी दुनिया में वो पुरानी अदबी फिल्मी रिवायत के अहिया के लिए आए, और उन्होंने 10 साल के सफ़र में साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी की शानदार फिल्मी रिवायत को एक बिल्कुल नए मानी और नए अंदाज से आशना कराया। फिल्मी गीतों के अलावा वो निहायत जदीद हिस्सियात से मुज़य्यन बेपनाह खूबसूरत नज़में कहते हैं। तो आप सबकी तालियों में हम दावत देते हैं अपने उस शायर को कि देखिए आज वो क्या इरशाद फरमाते हैं, लेकिन ये तय है कि वो जो भी इरशाद फरमाएंगे वो होगा कामिल। तशरीफ लाते हैं इरशाद कामिल साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरीन जी इजाज़त। असल में मैं
आया इस इरादे से था कि सुनाऊंगा कुछ और, लेकिन सुबह से बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कह चुके हैं कि निम्मो ज़रूर सुनाइएगा नज़म, और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से इस वजह से भी आए, कहते हम आपको आपके नाम से नहीं जानते, निम्मो वाला है ये जानते हैं। तो खैर मैं बहुत मुख्तसर कुछ एक दो शेर सुनाता हूँ और फिर एक नज़म जो मैंने कही वो सुना दूंगा। किस किस को तफसील बताएं क्या अंदाज हमारे हैं, किस किस को तफसील बताएं क्या अंदाज हमारे हैं, हमने एक दो शेरों से शीशे में चांद उतारे हैं, हमने एक दो शेरों से शीशे में चांद उतारे हैं। ना बदलेगी मेरी फितरत, ना बदलेगा नाम कभी, ना बदलेगी मेरी फितरत, ना बदलेगा नाम कभी, मैं बादल हूं टुकड़े होकर भी बादल कहलाऊंगा, मैं बादल हूं टुकड़े होकर भी बादल कहलाऊंगा। वो आती है या बिल्कुल ही नहीं आती, वो आती है या बिल्कुल ही नहीं आती, हंसी हमको कभी झूठी नहीं आती, हंसी हमको कभी झूठी नहीं आती। शेर देखिएगा कि ना देखो ख्वाब अच्छी लड़कियों का तुम, न देखो ख्वाब अच्छी लड़कियों का तुम, तुम्हें उर्दू अगर अच्छी नहीं आती। जी जी जी, न देखो ख्वाब, न देखो ख्वाब अच्छी लड़कियों का तुम, तुम्हें उर्दू अगर अच्छी नहीं आती। आसानी से कहा है, वाह वाह। जी उर्दू में बहुत शेर हो जाती हैं, तो मुझे लगा कि ये अचानक से हुआ। तो देखिए कि नींद में रात कई बार जगाया तुमने, नींद में रात कई बार जगाया तुमने, ख्वाब इस मोड़ से आगे ना बढ़ाया तुमने, नींद से रात कई बार जगाया तुमने, ख्वाब इस मोड़ से आगे ना बढ़ाया तुमने, वस्ल आधा ही रहा अपना हकीकत में भी, ख्वाब में ख्वाब भी आधा ही दिखाया तुमने। ख्वाब में ख्वाब भी आधा ही दिखाया तुमने, जरा कम हौसले वाला इरादा हो गया हूं, जरा कम हौसले वाला इरादा हो गया हूं, किसी कमसिन सी लड़की का मैं वादा हो गया हूं, जरा कम हौसले वाला इरादा हो गया हूं, किसी कमसिन सी लड़की का मैं वादा हो गया हूं, मैं खुद को बांटता फिरता हूं दुनिया में मसलसल, मैं खुद को बांटता फिरता हूं दुनिया में मसलसल, बिछड़ के तुमसे मैं कितना ज्यादा हो गया हूं, मैं खुद को बांटता फिरता हूं दुनिया में मसलसल, बिछड़ के तुमसे मैं कितना ज्यादा हो गया हूं। चलिए मैं अब नज़म पे आ जाता हूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। उससे पहले ये भी सुन लीजिए एक मतलब, वक्त एक चाल नहीं चलता है तुमसे मिलके, वक्त एक चाल नहीं चलता है तुमसे मिलके, शाम से पहले ही दिन ढलता है तुमसे मिलके, झूठ को झूठ ना मानूं ना कहूं सच को सच, झूठ को झूठ ना मानूं ना कहूं सच को सच, इतना अच्छा भी नहीं लगता है तुमसे मिलके। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है, गौर से मुझको देखो परखो फिर कहना तुम हाँ या ना,
गौर से मुझको देखो, परखो, फिर कहना तुम हाँ या ना। इश्क मेरा तौहीद नहीं है, झूठा भी हो सकता है। निमो पे आ जाता हूं। गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन। ये असल में थोड़ी इमोशनल किस्म की नज़म है, शायद इस वजह से मुझसे कहा गया है कि मैं ये सुनाऊं जो यहाँ रहते हैं लोग। अर्ज कर रहा हूँ भाई के गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन, निम्मो की तो शादी हो गई। गांव की गलियां पूछ रही हैं, कहाँ रहे तुम इतने दिन, निम्मो की तो शादी हो गई। हार गई थी दिन गिन गिन, बहुत देर तक रास्ता देखा, गांव को खुद पे हंसता देखा। उसे यकीन था लौटोगे तुम तो हो गए शहर में ही गुम। टूट गई फिर वो बेचारी, इंतजार में सब कुछ हारी, खुद से खुद ही गई वो छिन। कहाँ रहे तुम इतने दिन। एक मोड़ से मिला था कल मैं, उसके पास रुका एक पल मैं। पूछा कैसे हो तुम भाई, कैसे इतने साल बिताई। मोड़ बूढ़ा सा हुआ पड़ा था, लेकिन अब भी वहीं खड़ा था। मुझको वो पहचान न पाया, मैंने अपना नाम बताया। मोड़ खुशी से झूम उठा तब, बोला पढ़ा है तेरे बारे में सब। हो गए हो तुम बड़े आदमी, इंसान हो या फल हो मौसमी। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। एक साल में एक ही फेरा, गांव में भी तो घर है तेरा। निम्मो ये बोला करती थी, जाने कैसे जरती थी। चली गई वो अब लेकिन, मोड़ भी मुझसे पूछ रहा था, कहाँ रहे तुम इतने दिन। निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची, निम्मो गांव की सड़क थी कच्ची। जिसको मेरे बिन रोना था, एक दिन पक्का होना था। अच्छा हुआ कि पक्की हो गई, गांव में चलो तरक्की हो गई। हां पर मेरी निम्मो खो गई। इरशाद कामिल साहब को आपने सुना, और जाहिर है कि ये तमाम वो शोरा हैं जिनको हम मज़ीद सुनना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए हम मजबूर हैं। जिस अगले शायर को हम दावत कलाम दे रहे हैं, उनकी शायरी और शख्सियत में एक बड़ी मुनफरिद तख्लीकी उपज की झलक बहुत वाज़े नज़र आती है। वो सरतपा एहसास में डूबे हुए हैं और उनकी शायरी इसी एहसास की हमा जहती आईनादार है। आपने गुफ्तगू, खामोशी, खुशी, गम, पूरे वजूद की शायरी की है। आप तख्लीकी जहान में डूबे हुए हैं और आपकी शायरी में बहुत रोशन चमक मौजूद है। आपकी तहजीबी और तख्लीकी शख्सियत में अहद हाजिर का एक निहायत खल्लाक और मोतबर शायर मुस्कुराता नज़र आता है। आपका एक हवाला रेख्ता भी है, लेकिन जाहिर है कि आपका अव्वलीन और बुनियादी हवाला शायरी है। आपकी शायरी ख़ास है और बहुत ख़ास लोगों के लिए है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं इस गहरी तख्लीकी सजधज का और दावत कलाम देते हैं मोहतरम फरहत एहसास को। शुक्रिया हमबरीन इस मुबालके के लिए। अभी जो वक्त का मसला है इस वक्त, तो बहरहाल अपनी जगह है। मुझे डर यही था कि यही होगा कि हमसे पहले लोगों ने ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन फिर भी बहरहाल मतलब हमारी हालत ये है कि वनडे क्रिकेट में आखिरी 2 ओवर बचे हैं और इसमें 100 रन बनाने। दो नैरेटिव्स हैं इस दुनिया में। एक नैरेटिव है जुल्म और जबर का और उससे मुतालिक सारी चीज़ों का,
اور دوسرا نیریٹو ہے محبت کا. اور ہماری غزل ڈائی ہارڈ محبت والی غزل ہے. تو چاہے دنیا میں جتنے بھی ظلم و ستم ہوتے رہیں، ہمارا مرکزی موضوع ہمیشہ محبت رہے گی اور حسن رہے گا. چند شعر پیش کرتا ہوں. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز، تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز حکمران وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے. جو اپنے دل پہ محبت کا داغ رکھتا ہے، محبت کا داغ رکھتا ہے، چراغ سے بھی زیادہ چراغ رکھتا ہے. ملا ہے اب کے ایک ایسا پڑھا لکھا محبوب جو میرے دل سے زیادہ دماغ رکھتا ہے. جو اپنے دل پہ محبت کا داغ رکھتا ہے، چراغ سے بھی زیادہ چراغ رکھتا ہے. ملا ہے اب کے ایک ایسا پڑھا لکھا محبوب جو میرے دل سے زیادہ دماغ رکھتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ عقل مند کبھی جوش میں نہیں آتا، وہ عقل مند کبھی جوش میں نہیں آتا، گلے تو لگتا ہے آغوش میں نہیں آتا. وہ عقل مند کبھی جوش میں نہیں آتا، گلے تو لگتا ہے آغوش میں نہیں آتا. نشے میں دھت کیے رکھتے ہو مجھ کو آٹھوں پہر، دھت کیے رکھتے ہو مجھ کو آٹھوں پہر، اور اس پہ کہتے ہو میں ہوش میں نہیں آتا. نشے میں دھت کیے رکھتے ہو مجھ کو آٹھوں پہر، اور اس پہ کہتے ہو میں ہوش میں نہیں آتا. میرے ثبوت بہے جا رہے ہیں پانی میں، کسے گواہ بناؤں سرائے فانی میں. کہانی ختم ہوئی تب مجھے خیال آیا تیرے سوا بھی تو کردار تھے کہانی میں. کہانی ختم ہوئی تب مجھے خیال آیا تیرے سوا بھی تو کردار تھے کہانی میں. بس ایک لمس کہ جل جائیں سب خس و خاشاک، بس ایک لمس کہ جل جائیں سب خس و خاشاک، اسے وصال بھی کہتے ہیں خوش بیانی میں. بس ایک لمس کہ جل جائیں سب خس و خاشاک، اسے وصال بھی کہتے ہیں خوش بیانی میں. پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا. ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا. ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، آغوش میں کسی کی باد صبا بہت تھی، آغوش میں کسی کی باد صبا بہت تھی. ہم ایک گل گئے تھے گلزار ہو کے نکلے،
آغوش میں کسی کی باد صبا بہت تھی، ہم ایک گل گئے تھے، گلزار ہو کے نکلے. اور یہ 2-3 شعر اور دیکھ لیں کہ ہم سے ہی مل کہ ہم ہی تیرے یار لوگ ہیں، ہم سے ہی مل کہ ہم ہی تیرے یار لوگ ہیں، چھو اور چکھ کے دیکھ مزیدار لوگ ہیں. ہم سے ہی مل کہ ہم ہی تیرے یار لوگ ہیں، چھو اور چکھ کے دیکھ مزیدار لوگ ہیں. اور شعر دیکھیں کہ ایک ہم ہی تندرست یہاں ہیں بفیض عشق، ایک ہم ہی تندرست یہاں ہیں بفیض عشق، باقی تمام شہر کے بیمار لوگ. ایک ہم ہی تندرست یہاں ہیں بفیض عشق، باقی تمام شہر کے بیمار لوگ ہیں. اور دیکھیے شعر کی گھر چاہیے تمہیں تو ادھر عاشقوں میں آؤ، گھر چاہیے تمہیں تو ادھر عاشقوں میں آؤ، وہ جو رقیب ہیں در و دیوار لوگ ہیں. گھر چاہیے تمہیں تو ادھر عاشقوں میں آؤ، وہ جو رقیب ہیں در و دیوار لوگ ہیں. آخر میں دیکھیے 2 شعر اور سناتا ہوں کہ بس وہ آ جائے جسے دیکھ کے پاگل ہو جائیں، بس وہ آ جائے جسے دیکھ کے پاگل ہو جائیں، سب جو بامانی بنے پھرتے ہیں محمل ہو جائیں. محمل مانے ابزرڈ. سب جو بامانی بنے پھرتے ہیں محمل ہو جائیں. آنے والے ہیں میرے دشت محبت کے غزال، آنے والے ہیں میرے دشت محبت کے غزال، کوئی شہروں کو یہ سمجھائے کہ جنگل ہو جائے. فرحت احساس صاحب کی خوبصورت شاعری آپ نے سماعت کی. اور اب جس شاعر کو ہم دعوت کلام دے رہے ہیں وہ برطانیہ میں ہی مقیم ہیں اور آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں. بہت سینئر شاعر ہیں، فعال ادبی سماجیات میں یہاں پر بہت زیادہ ہیں. غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں اور مزاح بھی کہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے دکنی لہجے کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں اب لہجوں کی وہ رنگا رنگی ختم ہوتی جا رہی ہے، جو افسوس کی بات ہے، کیونکہ لہجے ہونے کا مطلب ہے ثقافتیں ہونا. تو ثقافتوں کا ختم ہونا ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج یہ 2 نظمیں سنائیں گے. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت کلام دے رہے ہیں ہمارے اگلے شاعر کو. تشریف لائیں گے محترم مصطفیٰ شہاب. ابھی ارشد صاحب نے ایک شعر سنایا تھا تو ایک شعر مجھے یاد آیا ہے. یہ جو ہے عباس تابش کا شعر ہے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ان کا شعر شروع کرتا ہوں اس سے. چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، میں عشق اس سے کروں گا جسے اردو آئے. عباس تابش صاحب کا شعر ہے یہ. چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں، میں عشق اس سے کروں گا جسے اردو آئے. اب میں 1-2 نظمیں سنانے والا ہوں. ایک بہت چھوٹی نظم ہے اور ذرا اس سے بڑی ہے. پہلی کا عنوان ہے دائمی بٹوارہ. دائمی بٹوارہ، ایٹرنل ڈویژن. دائمی بٹوارہ. شام کے نم مہین سایوں میں، یہ میں نے یہاں پہ ایک بروکوٹ قبرستان ہے، وہاں پہ میں نے یہ نظم لکھی تھی، لہذا اسی کا ذکر ہے. شام کے نم مہین سایوں میں
सौगवारी का जाल फैला था और सर्द खबरों पे सर झुकाए हुए सुरमई दिल फिगार कोहरा था। दफन थी हर कदम पे तन्हाई, मैं भी खामोश था, अकेला था। दफन थी हर कदम पे तन्हाई, मैं भी खामोश था, अकेला था। एक जानिब यहूदी खबरें थीं, एक जानिब से मरियम व ईसा, और एक कोने में कच्ची खबरों पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने सोचा अजीब लोग हैं हम, जिंदगी भर तो बट के जीते हैं और मर गए हैं तो खाक में मिलने फिर बटे दायरों में लेटे। एक दूसरी नज़्म, उसका उन्वान है कौन आया था। ये मेरे दोस्तों की फरमाइश से सुना रहा हूँ मैं। न जाने कौन आया था, हथेली के निशान जिसके किचन के मैले शीशों पर नुमाया थे। न जाने कौन था वो जो पुरानी खिड़कियों पर जोरे बाजू आजमाता था और उस पे घर का दरवाज़ा न खुलता था। पुराने घर बहुत मजबूत होते हैं, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। मगर रामन की सब्जी की दुकान से बासी तरकारी समेटे जो वो मुझको मुफ्त देता है। मैं घर लौटा तो दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर निशान एक अजनबी जूते के चश्मा थे। अगर वो चोर था तो मेरे घर से उसको क्या मिलता। मैं पेंशन याफ्ता बूढ़ा, न मेरे पास मालो ज़र, न कोई बेबहा पत्थर, न कपड़ा है न लत्ता है, फ़कत एक सूट काला है। बुलावा आए तो उसको पहनकर सोग की महफिल में जाता हूँ, जहाँ कुछ दोस्त रिश्तेदार मिलकर वाइन और स्कॉच पर मरहूम के अच्छे बुरे को याद करते हैं। मगर अब चंद बरसों से वो मेरा सूट बेचारा यूं ही लटका हुआ है। वो भी शायद सोचता होगा कि अब पहले की तरह अब लोग आखिर क्यों नहीं मरते, बुलावा क्यों नहीं आता। जो मेरे पास सबसे कीमती शय है वो एक टीवी पुराना है। जो टीना मेरी बीवी की निशानी है, जिसे रुखसत हुए शायद कोई 16 बरस गुजरे, मगर अब तक मुझे लगता है जैसे बस अभी टीना किचन से चाय की गर्मा गर्म 2 प्यालियाँ ले आएगी और मिलके टीवी के मुकाबिल हम यूं ही बैठे रहेंगे मुनहमिक खामोश। असासे में मेरी पेंशन की बुक है जो मैं हर मंगल को जाकर डाकघर में पेश करता हूँ। वहाँ की कैशियर लड़की लगावट से मेरी पेंशन मुझे देने से पहले ऐसे खुलकर मुस्कुराती है कि मैं पेंशन से कहीं बढ़कर उसकी दिलकश मुस्कुराहट कैश करता हूँ। अचानक मैं मोहल्ले की खसाई की दुकान में खुद को पाता हूँ। खसाई देखकर मुझको हमेशा पूछता है, फिर वही ऑर्डर। मेरी हाँ पर वो एक छोटा सा टुकड़ा का मुझको दिखाकर पैक करता है। उसे मालूम होगा मैं कभी इससे ज़्यादा अपनी पेंशन में तसर्रुफ कर नहीं सकता। महीने साल में 6 आउंस का स्टेक मांगूं तो बड़ी हैरत से कहता है, तुम्हारी आज पैदाइश का दिन होगा। उसी मंगल के दिन बाजार में एक शख्स मिलता है। न मेरा दोस्त है, उससे न मेरा कोई रिश्ता है। पुरानी हैट को सर से उठाकर सर झुकाता है। वो फिर मौसम की सख्ती की शिकायत करने लगता है। मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ। वो कहता है गिरानी बढ़ती जाती है। मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ। वो कहता है हुकूमत कुछ नहीं करती। मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ।
وہ کہتا ہے میں بجلی گیس کے بل پے نہیں کر سکتا، میرے لب بند رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ سارے مجھ کو چاہتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں، مگر سب دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ بڑے سے گھر ہیں ان کے، اپنے بزنس ہیں۔ میں ایسے مسکراتا ہوں کہ جیسے اس کا کنبہ میرا کنبہ ہو۔ میں اپنی کچھ نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کے بولنے کے بعد باقی کچھ نہیں رہتا۔ میں ایک چھوٹی سی دنیا میں پلٹ کر پھر اکیلا لوٹ آتا ہوں، مگر اس بار جانے کون آیا تھا میری اس خالی دنیا میں، اچانک کون آیا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ شہاب صاحب۔ اور خواتین و حضرات، جشن ریختہ کا یہ مشاعرہ الفاظ و انداز اب اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، اور آج اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں باسر کاظمی صاحب۔ باسر کاظمی صاحب کو ادب اور شعر سے وابستگی وراثت میں ملی، لیکن انہوں نے نہایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس شناخت سے الگ ہو کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر اپنی شناخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ کہتے وہ غزل ہی ہیں اپنے نہایت نامور والد ناصر کاظمی صاحب کی طرح، لیکن چھوٹی بحر میں غزل کہیں یا درمیانی بحر میں، وہ اپنے تجربات کو اپنے مزاج اور اپنی لفظیات سے اس طرح تخلیق کرتے ہیں کہ اس پہ ان کے دستخط آ جاتے ہیں۔ آپ نہایت زبردست ڈرامہ نگار بھی ہیں، اور آپ کے ڈرامے اسٹیج بھی ہو چکے ہیں اور برطانیہ کے نصاب تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے اشعار بھی یہاں مختلف چوک پر لکھے ہوئے ہیں، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی، اور آپ استاد بھی ہیں، اور نہایت اعلیٰ تعلیمی اداروں سے آپ وابستہ رہے ہیں اور وہاں اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں نہایت سادگی، سنجیدگی اور تخلیقی اپج پائی جاتی ہے، اور یہی خصوصیات ان کی منفرد غزلوں میں بھی ہیں۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم بصد احترام ملتمس ہیں آج کے صدر باسر کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کلام عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ میں ریختہ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ، بالخصوص سنجیو سراف جی اور ہما خلیل صاحبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا شاندار جشن انہوں نے، اور یہ ان بہت سی جو ان کے کام ہیں، ان کی خدمات ہیں اردو ادب کے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے، ان میں سے ایک واقعہ ہے اور یادگار، انتہائی یادگار رہے گا۔ اور آج کتنے ایونٹس تھے، ایک کے بعد ایک اور ایک سے ایک بڑھ کر۔ مشاعرے کا واقعی اور جو بعد میں ہوتے ہیں ایونٹس، فرحت احساس صاحب نے کہا کہ معاملہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 2 اوور باقی ہیں اور بہت سے سکور کرنے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 42واں اوور چل رہا ہوتا، کہتے ہیں کہ باقی 8 اوور تو ہوں گے ہی نہیں کیونکہ بارش ہو گئی اور دوسری ٹیم بیٹنگ کرے گی۔ بہرحال حسب ارشاد 2 غزلیں پیش کرتا ہوں مختصر سی۔ کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں، کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں، باسر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں، کتنی ہی بے ضرر سہی تیری خرابیاں، باسر خرابیاں تو ہیں پھر بھی خرابیاں، حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری، حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری، ہوتی ہیں ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں، حالت جگہ بدلنے سے بدلی نہیں میری، ہوتی ہیں ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں، جوں ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب، جوں ہی تعلقات کسی سے ہوئے خراب، سارے جہاں کی اس میں ملیں گی خرابیاں،
اور تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد، تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد، مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو چاہتا ہے اپنی نئی خوبیوں کی داد، مجھ کو عزیز تیری پرانی خرابیاں، اور سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب، سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب، یارو کہاں کی خوبیاں کیسی خرابیاں۔ سرکار کا ہے اپنا ہی، سرکار کا ہے اپنا ہی معیار انتخاب، یارو کہاں کی خوبیاں کیسی خرابیاں۔ اور باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں، باصر کی خوبیاں بھی، باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں کچھ خوبیاں خراب، کچھ اچھی خرابیاں۔ باصر کی شخصیت بھی عجب ہے کہ اس میں ہیں کچھ خوبیاں خراب، کچھ اچھی خرابیاں۔ اور ایک اور غزل کے بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف، بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف، کہتا ہے دل کہ آج نکل جا کسی طرف۔ بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سبھی طرف، کہتا ہے دل کہ آج نکل جا کسی طرف، تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے، تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے، اچھا ہوا کہ ہم نے نہ دیکھا تیری طرف۔ اور جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا، جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا، بس آج آنے والے تھے ہم آپ کی طرف۔ جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا، بس آج آنے والے تھے ہم آپ کی طرف۔ اور اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں، اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں، لگتا ہے آ رہا ہے وہ فتنہ اسی طرف۔ اچھا ہے کیا اے دل، شکریہ، اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں، لگتا ہے آ رہا ہے وہ فتنہ اسی طرف۔ اور خوش تھا کہ چار نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس، خوش تھا کہ چار نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس، نکلے گناہ بیسیوں الٹا میری طرف۔ شکریہ۔ خوش تھا کہ چار نیکیاں ہیں جمع اس کے پاس، نکلے گناہ بیسیوں الٹا میری طرف۔ اور باصر عدو سے ہم تو یوں ہی بدگماں رہے، باصر عدو سے ہم تو یوں ہی بدگماں رہے، تھا ان کا التفات کسی اور ہی طرف۔ کر لیا دن میں کام 8 سے 5، کر لیا دن میں کام 8 سے 5، اب چلے دورے جام 8 سے 5۔ کر لیا دن میں کام 8 سے 5، اب چلے دورے جام 8 سے 5۔ چاند ہے اور آسمان ہے صاف، چاند ہے اور آسمان ہے صاف، رہیے بالائے بام 8 سے 5۔ اب تو ہم بن گئے ہیں ایک مشین، اب ہمارا ہے نام 8 سے 5۔
اب تو ہم بن گئے ہیں ایک مشین، اب ہمارا ہے نام 8 سے 5۔ اور شعر کیا شاعری کے بارے میں، شعر کیا شاعری کے بارے میں سوچنا بھی حرام، 8 سے 5۔ شعر کیا شاعری کے بارے میں سوچنا بھی حرام، 8 سے 5۔ اور وہ ملے بھی تو بس یہ پوچھیں گے، وہ ملے بھی تو بس یہ پوچھیں گے کچھ ملا کام وام۔ وہ ملے بھی تو بس یہ پوچھیں گے کچھ ملا کام وام، 8 سے 5۔ اور محفل اہل ذوق ہے باصر، بے شک محفل اہل ذوق ہے باصر، اب سناؤ کلام، 8 سے 5۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے، یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے، میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا کم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے، میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا کم ہے، اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، جان لیتے ہیں کہاں کوئی ستارہ کم ہے۔ اور دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے، ہمارا کم ہے۔ دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے، ہمارا کم ہے۔ اور اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں، اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں، ہم نے ہمراہ ابھی وقت گزارا کم ہے۔ اور صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے۔ بہت صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے۔ اور مکتا ہے کہ آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باصر، آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باصر، کون سا کام ہے وہ جس میں خسارہ کم ہے۔